हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आपका दोस्त हंसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं इसलिए कि आज हम बैठे हैं शिक्षा के मंदिर में, डीएवी स्कूल के अंदर। डीएवी स्कूल हांसी में वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है और टॉपिक रहेगा हमारा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज हम एक ऐसे शिक्षाविद के साथ बैठे हैं जिन्होंने शिक्षा को जिया है। आप हैं कोमल शर्मा, प्राचार्य हैं डीएवी स्कूल हांसी की। इन्हीं से जानते हैं, बड़ी विद्वान हैं, शी इज़ वेरी एजुकेटेड, वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट यहाँ हैं। तो उनसे जानते हैं कि न्यू पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई है लेकिन उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है 300 पेज का, तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या यानी कि वोकेशनल चीज़ें आई हैं, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इनसे जानते हैं कि शी इज़ वेल वर्स्ड अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। मैडम, सबसे पहले तो हंसी की आवाज़ पे आप दूसरी या तीसरी मरतबा आ रही हैं, आपका वेलकम है और आई एक्सप्रेस माई वेलकम टू हंसी की आवाज़ मीडिया। थैंक यू। हम जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो क्या है और कब कब ये हुई थी और इसके बाद। सर, सबसे पहले भारत की एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकेंड आई 1986 में, दैट वाज अमेंडेड इन 1992 एंड दिस टाइम इन 2020 द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन ड्राफ्टेड, prepared by Indian government, HRD ministry. And so according to me, this education policy is having a very bright future of our India, as the main emphasis has been given on the practical knowledge. Many changes has been introduced in this policy, as the main thing is the student will learn in its regional language. I would like to ask a question, यानी कि in private schools and corporate schools there is a foundation course and in government school there is no foundation course. So what about the foundation course in new policy? Can you personify the foundation course? So earlier it was there that in government schools education started from class 1 and the system was 10 plus 1 and 10 plus 2. But now the whole education schooling has been divided into 4 parts. The very first is foundation course and that is of 5 years. 5 years में क्या क्या include होता है? That is kindergarten classes, class 1 and class 2. So up to second, from nursery up to second, these 5 years will be called as foundational courses, foundational stage. So in these 5 years, students will be prepared to be ready to grasp education. Their foundation will be prepared, and the most appreciating thing is that parents will also be given guidelines by the education ministry. After foundation course there will be a theory. Yes. There is a preparatory stage of 3 years, that is class 3rd, 4th and 5th. So in these 3 years, student will be prepared to receive higher education, the middle stage. Then student will enter into middle stage of education, that will be of class 6, 7 and 8. It will be also of 3 years. Then after these completion of these middle classes, student will enter into secondary education. That will be started from class 9th up to 12th. And the main change we can say that now student will be able to choose the streams from 9th onwards. Earlier it was there from 11th. My question is this, from onwards 9th class, a humanities student who can intermingle the subject of the science or medical subject also, yeah, he can take the medical or humanity parallel subjects.
Sir, the next big change has been done in this policy is that there is a hard separation of streams जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने साइंस लिए सपोज करी तो उसको साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वेदर विद द मेडिकल और नॉन मेडिकल। वो पढ़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। उसके पास दो ही ऑप्शन थे कि साइंस स्ट्रीम को या तो वो मैथ्स के साथ करे या वो बायोलॉजी के साथ करे। अब किसी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ सपोज करिए इंटरेस्ट नहीं है बायो में, तो वो इसको छोड़ के म्यूज़िक ले सकता है, कुछ और ले सकता है। तो यहाँ पे लीनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड कर दी गई है कि ह्यूमैनिटी के साथ आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ आप कुछ और अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव। कैसे पॉसिबल है कि भी आप साइंस के साथ, साइंस फैकल्टी के साथ, साइंस सब्जेक्ट के साथ म्यूजिक भी ले ले, आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस भी ले लें, हिस्ट्री भी ले लें? इज इट पॉसिबल कि भी ये कि भी? सर, क्योंकि अभी हम इस एस्पेक्ट से सोच रहे हैं क्योंकि हमारी स्कूलिंग वैसे हुई है। अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ ले ली तो हम ह्यूमैनिटी आर्ट्स के स्टूडेंट कहे जाएंगे, साइंस ले ली तो वी आर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, कॉमर्स ले ली तो हम कॉमर्स के हैं, फिर हम बिज़नेस में और कंप्यूटर में इन चीज़ों में जाएंगे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने सोच के किया है सर, ये आने वाले टाइम में इसका क्लियर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि कैसे पॉसिबल होता है। जब ये एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है 300 पेज का, अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, तो इसमें लैंग्वेजेस की, यानी कि यू कैन चूज़ योर ऑन मदर टंग, ऑन स्टेट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो देर में बी सो मैनी bottlenecks in higher education, and when you enter in the engineering side and medical science, and you are not well versed in English, so how you will pick up the higher education in particular stream, engineering stream, medical stream, and the So no doubt, English is very important and international language. जितने भी मेडिकल कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, वो सभी इंग्लिश बेस्ड होते हैं। हाईटेक नहीं है। क्या मदर टंग में पढ़ के बच्चा नॉलेज को ग्रेस्प नहीं करता? होगा, लेकिन ये समय के साथ होगा। क्योंकि अगर आप फ्रॉम वेरी बिगनिंग बच्चे को एक शुरू से उसकी मदर टंग में पढ़ाते हैं तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है। आप नर्सरी से लेके क्लास 8 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो उसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, बच्चा क्वेश्चनिंग ज़्यादा करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा होगी, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर ज़्यादा होंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि क्या हायर लेवल पे ये मदर टंग फार्मूला सक्सेसफुल रहेगा या फ्लॉप हो जाएगा? आपका यही क्वेश्चन है। हाँ, माय बेसिक क्वेश्चन इज दिस कि भी जब वो कैसे, यानी कि कॉमन कैसे होंगे बच्चे, इंटरेक्ट कॉमन कैसे होंगे, कॉमन कैसे पढ़ेंगे? एक तेलुगु से पढ़ के आया है, एक हिंदी से पढ़ के आया है, एक मलयालम से, एक कन्नड़ से, तो कॉमन यानी कि उनके लिए अलग अलग लिंग्विस्टिक टीचर्स रखने पड़ेंगे क्या? और कैरिकुलम क्या होगा उनका फिर? सर, करिकुलम तो वही होता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में करें। उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, अनुवाद कैसे करोगे आप? तेलुगु में कैसे? आप न्यूटन का लॉ है, उसको तेलुगु में करेंगे? बिल्कुल, उसको से मेडिकल की चीज़ें तो वही हैं। अब आप इट इज़ वेरी लिंगरिंग ऑन प्रोसेस। ये तो बहुत यानी कि लंबा नहीं होगा? नहीं सर, लिंगरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये अभी पॉलिसी हमने एग्जीक्यूट नहीं की। एग्जीक्यूशन में ही अभी इसके 2 से 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि बुक्स तैयार होंगी, अकॉर्डिंगली टीचर्स तैयार होंगे, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद सर, जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चा हायर लेवल पे क्या करेगा, तो सर ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं ये क्लास 8 तक रहेंगी। क्लास 8 में फिर बच्चा हायर जब मिडिल क्लास में जाएगा तो उसको इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। फिर चलेगा 3 लैंग्वेज सिस्टम, 3 लैंग्वेज फार्मूला। एक मदर टंग हो सकती है, और एक इंग्लिश हो सकती है, और एक दूसरी इंडियन लैंग्वेज कोई हो सकती है। उसमें आपकी हिंदी आ जाएगी या कोई भी यू कैन से नेशनल लैंग्वेज आ जाएगी। लेकिन आप 3 लैंग्वेज फार्मूला में 2 फॉरेन लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते। सपोज करिए कि ऑलरेडी आपके पास इंग्लिश है और एक आपके पास तमिल है,
तो आप दूसरी फ्रेंच नहीं ले सकते, आपको कोई इंडियन लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं ले सकते। हाँ। और फिर उसके बाद फिर आगे कहा गया है कि जो ये हायर कोर्सेज हैं उनमें भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेज 8 क्लास तक बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कोर्सेज तैयार करेगी जो रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज होंगे। तो वर्चुअल लैब्स होंगी, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, हर लैंग्वेज में मैटर आपके पास अवेलेबल होगा। ई लैंग्वेज से आपका मतलब है कि डिजिटल लैंग्वेज वर्चुअल लैब्स में बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी जिसमें वो नेट पे भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। आप प्राइवेट स्कूल में तो ये यानी कि फाउंडेशन कोर्स करवाती ही हैं, तो ये यानी कि नेशनल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें फाउंडेशन कोर्सेज चालू करने की प्रक्रिया चालू? हाँ, अभी नहीं है। अभी गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से शुरू होता है, लेकिन आंगनबाड़ी का एक कंसेप्ट है इंडिया में। आंगनबाड़ी वहाँ पर ये फाउंडेशनल कोर्सेज तैयार किए जाएंगे। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं गवर्नमेंट उनको एनटीटी टाइप कुछ प्रोग्राम करवाएंगे। आंगनवाड़ी में तो बिल्कुल यानी कि इतना उनका स्टेटस नहीं होता है, लास्ट में स्टेटस नहीं होता है, तो आंगनवाड़ी वाली यानी कि जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसे पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों? वो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड फॉर टीचिंग, सो दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। गवर्नमेंट विल अप्लाई इट आफ्टर देयर ट्रेनिंग्स, so proper training will be given to the आंगनबाड़ी वर्कर्स और entities will be appointed there। मैडम कोमल, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये 300 पेज का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट में इसमें सुझाव भी मांगे गए हैं, कितने सुझाव मांगे गए हैं और कहाँ से इसके यानी कि सजेशंस आए हैं, एडवाइजेज आई हैं, और क्या आपको कितना यानी कि फ्रूटफुल? और सर, आई एम वेरी होपफुल विद दिस एजुकेशन पॉलिसी बिकॉज द कंसेप्चुअल नॉलेज विल बी गिवन इन दिस पॉलिसी। कंसेप्ट क्लियर करे जाएंगे, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो ज़्यादा अपनी योग्यताओं को ज़्यादा निखार पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या सर, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि इसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। क्लास 6 ऑनवर्ड स्टूडेंट विल अटेंड 10 days वोकेशनल एजुकेशन जिसमें बैगलेस होगा और बच्चा जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, सपोज करो कारपेंट्री में है, कुकिंग में है और किसी भी तरह के एक स्किल को डेवलप करने के बाद ही वो स्कूल में। क्या इस पॉलिसी से बिल्कुल कम होगा सर। जब बच्चे के हाथ में एक हुनर डेवलप हो जाएगा, बच्चा स्किल्ड हो जाएगा, अपनी स्कूलिंग को पूरा करने के साथ साथ एक स्किल भी उसका डेवलप हो जाएगा, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो अपना बिजनेस चला सकता है, वो एक सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। तो ये इसकी ब्राइट साइड है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि देयर इज ए प्रोज एंड गेन्स ऑफ दिस पॉलिसी आल्सो। ये सर, अप्लाई करने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तैयारियां अभी करनी बाकी हैं, टीचर्स उस तरीके के तैयार होंगे, करिकुलम उस तरीके का तैयार होगा, तो बहुत अच्छी है एजुकेशन पॉलिसी। सो नाइस ऑफ यू मैडम कोमल, आप हमेशा अच्छा बोलती हैं और जो भी बोलती हैं वो एक वेल वर्स तरीके से बोलती हैं और आपको हर थॉट क्लियर होता है। यू आर वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट, यानी कि मैं और डीएवी स्कूल की आप वन ऑफ द प्रिंसिपल हैं हांसी की, तो मैं आपको आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू टू कमिंग ऑन माई मीडिया हांसी की आवाज़। आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही यानी कि व्यूवर्स को देके जाती हैं, इसके लिए मैं आप मेरे सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी के साथ यही आपसे इल्तिजा करता हूं कि इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, बेल बटन दबाइएगा। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा दोस्तों। इसी तरह के एजुकेशन के प्रोग्राम हम आपके पास लेते आएंगे। नमस्कार।